ڈسکا میں تجاوزات کی بھرمار، شہر کے بازار، سڑکیں اور گلیاں سکڑ کر رہ گئیں، پیدل چلنا محال ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں مظفر علی سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسکا شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اگر بات کی جائے ڈسکا شہر کے اندرون حصے کی تو دکانداروں نے 6 سے 60 فٹ کا سامان اپنی دکانوں کے باہر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح سکول کے اور کالجوں کے آگے بھی تجاوزات قائم ہیں۔ چھٹی کے ٹائم طلبہ اور طالبات کو جو ہے وہ گھر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد روڈ پر، جہاں پر بھی جو ہے وہ دکانداروں نے اپنی دکان کے آگے 6 سے 7 فٹ کا جو ہے سامان رکھا ہوا ہے۔ اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ تجاوزات ختم کروانے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ شہریوں نے حکومت بہت وقت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹانگ کا بازار روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عادم خان سے، جی عادم بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹانک مین بازار میں۔ یہ ٹانک کا واحد بازار ہے جو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ محیط ہے۔ تقریباً 4 سال قبل یہاں پر ایک ٹینڈر منظور ہوا تھا اس سڑک کو بنانے کا، لیکن سیاسی رشا کشی کی وجہ سے یہ سڑک ابھی تک تعمیر نہ ہو سکا۔ میں آپ کو ایک اور طرف دکھاتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 60-70 میٹر جو ہے یہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ وہ روڈ ہے جو نہ بن سکا۔ یہ 1.5 کلومیٹر جو ہے اس کی کل رقبہ ہے۔ تو لوگ جو ہیں بہت تکلیف میں ہیں۔ یہاں پر جو رش ہوتا ہے، ٹریفک کا رش ہوتا ہے، اس کی روانی میں خلل ہوتا ہے، تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ آخر ایسی کیا بہت وجہ۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صوابی کی سڑکوں کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہو گیا، دھول اڑنے سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں کے لیے آمد و رفت امتحان بن گئی۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے لاجبر خان۔ صوابی ٹو جہانگیرہ روڈ کی ڈوالائزیشن پر کام میں تاخیر نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ چند دن کام کر کے مہینوں تک کوئی کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ آئے روز کئی حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس روڈ کے اوپر تین سال سے اوپر ہو گیا کام سٹارٹ ہے، اور کوئی کام اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ روڈ کے دونوں سائڈ پہ ان لوگوں نے کام شروع کیا۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ روڈ کے ایک سائڈ پہ کام شروع کر دے، دوسرا روڈ خالی ہوتا ہے۔ روڈ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے 10 منٹ کا فاصلہ 1 گھنٹہ میں طے کرنا پڑتا ہے۔ نوکر پیشہ افراد اور طلباء کو تعلیمی اداروں کو وقت پر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ غریب ہے، رکشوں والے ہیں اور بھی پلین کوچ والے ہیں، ان کو بھی زیادہ مسئلے ہیں، ٹائم پہ بھی نہیں پہنچ جاتے ہیں، ویسے پیٹرول بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ پلیز آپ جلد سے جلد اس روڈ کی کام کو کمپلیٹ کریں۔ ایک طرف عوام کو مختلف بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے تو دوسری جانب روزانہ گاڑیوں میں بھی مرمتی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لاجبر خان، سچ نیوز، صوابی۔ پاک پتن شریف کے بنیادی مرکز صحت میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ادویات کی عدم فراہمی کے باعث مریض ذیل و خوار ہونے لگے۔ بیورو چیف نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ پاک پتن شریف کے تاریخی اور بہت بڑے قصبے بیلی دلاور کے ہسپتال میں ادویات کا فقدان ہے۔ معدے، کھانسی اور بخار کی ادویات بھی ہسپتال میں موجود نہیں ہے۔ ہسپتال 2 بجے دن کو بند بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 50 کلومیٹر کر کے دور عارف والا شہر جانا پڑتا ہے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ یہاں سے عارف والا تقریباً 30-40 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ تو 1-2 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے، حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کو 24 گھنٹے کرے اور ادھر ادویات جو وہ مہیا کی جائیں۔ یہ مطالبہ ہے کہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے، اس ہاسپٹل کو بہت زیادہ علاقہ لگتا ہے، تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو RHC کا درجہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو ایمرجنسی کی صورت میں عارف والا نہ جانا پڑے اتنی دور، اور ایمرجنسی کی صورت میں ان کے مسائل ادھر ہی حل ہو جائیں۔ دریائی علاقوں کا یہ وحید ہسپتال ہے۔ دور دراز کے لوگ سفر کر کے اس ہسپتال میں آتے ہیں اور ہسپتال میں کوئی سہولیات بھی نہیں ہے۔ بلاڑا لکھوں کا، بلاڑا حسن کا، 34 کے بھی، 38 کے بھی، جمن شاہ، فرید شاہ، کوریا، بیٹ بٹیاں، ڈھولا بستی، محمد حسین کھرڑ سمیت بہت سے علاقے کی عوام کو اس حوالے سے شدید مشکلات ہیں۔ یہاں کی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی کہ برائے مہربانی اس بنیادی مرکز صحت کو 24 گھنٹے کے لیے کھولا جائے اور ادویات بھی فراہم کی جائے تاکہ ہمارے پیاروں کی جانیں تو بچ سکیں۔ کیمرامین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔
टंडू बागू में टाउन पंगरियों का सेहत मरकज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डॉक्टर्स की अदम तैनाती शहरियों के लिए सर दर्द बन गई। मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानते हैं सोहेल अराई की रिपोर्ट में। 50,000 से जायद आबादी रखने वाले पंगरी और गिरदनवा के लोगों को तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए सेहत मरकज कायम किया गया है, मगर दौर जदीद में भी सेहत मरकज बहुत से मसाइल का शिकार है। जबकि सेहत मरकज में 4 मेल और 2 फीमेल समेत 12 आसामियां खाली हैं। सेहत मरकज में अद्वियात की अदम फराहमी के बाद मरीज बाहर से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी के बायस इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों को दूर जिले हेडक्वार्टर अस्पताल या फिर दूसरे अजला में रेफर किया जाता है। यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है। इसी वक्त पता नहीं कितने डॉक्टर हैं, 10-15 हैं, उसमें एक बैठा हुआ है जो भी बाहर से मंगवाया गया है। यहाँ पे ना मेडिसिन है, कोई भी चीज़ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। गरीब लोग बेचारे आ रहे हैं, वो वैसे ही बस मायूस होकर चले जा रहे हैं। पंगरियों के शहरियों ने निगरान हुकूमत सिंध और महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल में सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए और अद्वियात की किल्लत को खत्म किया जाए, जिससे शहरी मुश्किलात और हादसात या दीगर सूरत में मरीजों का बर वक्त इलाज हो सके और कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। दायरे दीन पनाह की सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर बीमारियां फैलाने लगे। ताफुन के सबब सांस लेना महाल हो गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बहस दायरा दीन पनाह शहर सीवरेज और सफाई के मसाइल से दो चार है। म्यूनसिपल इंतजामिया के लिए सीवरेज और सफाई के मसाइल को हल करना मसला फीसा गौरस बन गया। जगह जगह गंदा पानी और कचरा होने की वजह से बदबू और तफन उठने लगा। गलियों और नालियों में खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए बीमारियां बांटने लगा। सफाई सुथराई न होने की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया शहर का सीवरेज और सफाई करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दायरा दीन पनाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया को चाहिए जो है ना सफाई का खास ख्याल रखे। नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाजियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से दायरा दीन पनाह शहर की सीवरेज सिस्टम और सफाई की अबतर सूरत हाल पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़ दरदीन पनाह। कमालिया में गैस का बहरान संगीन हो गया। नाश्ते और खाने के औकात भी गैस गायब रहने लगी। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब खुश्क लकड़ियों और LPG गैस की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना इम्तिहान बन गया। जदन दी लोड शेडिंग हुई है गैस दी, असी बड़े परेशान है। लकड़ी 200 रुपये मन मगर वध गई, गाह कमदा कीमत पुछ के मुड़ जाता, सानू पिछू बड़ी महंगी मिलती। शहरियों का कहना है कि LPG गैस और खुश्क लकड़ी की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आम आदमी के लिए महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बाहर का खाना बहुत महंगा है, खरीद नहीं सकते। हुकूमत वक्त से अपील है कि गैस की लोड शेडिंग को फिल फौर खत्म किया जाए ताकि घरेलू सार्फिन 2 वक्त का खाना आसानी से बना सकें। सर्दियों में खुश्क लकड़ी और गैस की कीमत में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी इम्तिहान बन चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमाली। वाहकेंट और गिरदोनवाह में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस प्रेशर में कमी, घरेलू सार्फिन के लिए खाना पकाना महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही वाह कैंट और गिरदनवाह में गैस सिर्फ चंद घंटों के लिए दस्तयाब होती है और इस वक्त प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से तालिब इल्म और ऑफिस जाने वाले अफराद बगैर नाश्ते के जाने लगे। मकामी लोग कहते हैं कि सुबह, शाम और रात के वक्त गैस प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। महकमे सुई गैस ने मौसम तब्दील होती ही लोड शेडिंग अरूज पर पहुंचा दी। गैस ना बिल्कुल जिस नाश्ते दे लो ना रोटियां दे लो ना बच्चे स्कूल वैन गैस होनी नहीं तो बाद 12 बजे या 11 बजे सा गैस क्या करना बिल्कुल ही नहीं होती। बिल्कुल न चाय के लिए इधर मतलब जब बन सकती है, ना खाना पीना इधर बन सकता है और बगैर जो है ना वो नाश्ता किए बच्चे स्कूल जाते हैं तो दुरानिया इसका जो है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये आती है दोबारा। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए महंगी लकड़ी और सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि 3 साल के अरसे में नए मीटर न लगाना महकमा की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाकंड। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट अथॉरिटी के बंदिश के खिलाफ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इदारे के अमूर मुकम्मल बंद होने से हमारा रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मीर उस्मान।
ادارہ ترقیات کی بندش کے خلاف ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا دھرنا آج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ادارہ کے امور مکمل بند ہونے سے ہمارا روزگار شدید متاثر ہوا ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہیں نہیں کہا کہ ادارے کو مکمل بند کیا جائے۔ پلاٹوں کی منتقلی اور نئے نقشہ نہ بننے سے اوورسیز شدید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں وہ یقین کریں کہ بہت ہی افسردہ ہو چکے ہیں اور وہ ادھر انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے وہ اسلام آباد بحریہ DHA میں جا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور اس ادارے کو کھولا جائے۔ اوورسیز کا کہنا ہے کہ ہم مختصر وقت کے لیے پاکستان آتے ہیں، اگر اس دوران ہمارے کام مکمل نہ ہو تو ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر جلد نوٹس لے کر ادارہ کو کھلوائیں تاکہ اوورسیز اور مقامی لوگوں کے کام بر وقت ہو سکیں۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میر عثمان، بیورو چیف، سچ ٹی وی، میرپور آزاد کشمیر۔ باغ میں ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے شاہراہ بند کر کے شدید احتجاج کیا۔ مزید جان لیتے ہیں حسام خورشید کی رپورٹ میں۔ مین کیمپس سے بینظیر پیلس کیمپس تک احتجاجی مارچ کیا۔ مین شاہراہ بند کر کے احتجاج کیا۔ اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ ملازمین نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آزاد کشمیر کی 5 جامعات شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ آج ہم یہاں سارے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے یا فیکلٹی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ احتجاج حکومت سے ہے، اسپیشلی کہ وہ ہماری اس وومن یونیورسٹی کو آن کریں۔ سارے ملازمین کو 30% اور 35% مل چکا ہے، جبکہ جامع خواتین کے ملازمین اور دیگر جو جماعت ہیں ہمارے آزاد کشمیر کی 5 جماعت، آج تک ہماری ساری جماعت کے ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، گزشتہ 1 ماہ سے ہم لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہ میں 30% اور 35% اضافہ کیا جائے۔ جامعات کو بچائیں اور ان کے مالی مسائل جو ہیں ان کو فوری طور پر حل کریں۔ بصورت دیگر جو طالبات ہیں ان کی تعلیمی حرج ہوگا۔ حکومت جامعات کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے آئینی ترامیم کر کے خصوصی گرانٹ دے۔ ملازمین نے حکومت اور چانسلر کو مطالبات کی منظوری کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اگر مطالبات حل نہ ہوئے تو 2 جنوری سے قلم چھوڑ اور تدریسی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ پیپلا کے شہری مضر صحت اشیاء کھانے سے بچ گئے۔ پیپلا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے ٹرک اڈا کے قریب گھر پر پولیس کے ہمراہ چھاپا مارا۔ گھر سے 538 کلو ملاوٹ شدہ مسالہ جات برآمد کر لیے گئے۔ کھانے کی اشیاء میں جعل سازی کرنے پر مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھوانہ میں بار ایسوسی ایشن نے 1 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وکلاء نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ رپورٹ کریں گے ناصر علی قاری۔ بھوانہ پاکستان بار کونسل کی کال پر تحصیل بار ایسوسی ایشن کی طرف سے انڈین سپریم کورٹ کی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی برقرار رکھنے کے حکم پر شدید مذمت کرتے ہوئے 1 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا ہے۔ اس موقع پر سابق سیکرٹری تحصیل بار چودھری سجاد محمد خان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اور سپریم کورٹ کے ہندوتوا کے پرچار کے لیے متعصبانہ فیصلے کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ چودھری سجاد محمد خان کا کہنا تھا کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر سے نکلنے والے وسائل پر قابض ہے اور دریاؤں کا پانی روکنا چاہتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ناصر علی قاری، سچ ٹی وی، بھوانہ۔ کشمور میں گڈو بیراج کا پل خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ جگہ جگہ گہرے کھڑے پڑ چکے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے اختیار سولنگی۔ کشمیر میں موجود دریا سندھ گڈو بیراج کا سنگ بنیاد صدر سکندر مرزا نے 2 فروری 1957 میں رکھا، جبکہ تعمیرات کام 7 سال کے بعد مکمل ہوا۔ دریا سندھ گڈو بیراج کا افتتاح فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان نے 1 مارچ سن 1963 میں کیا، جبکہ گڈو بیراج کو 65 گیٹ لگائے گئے۔ دریا سندھ گڈو بیراج سے 12 لاکھ کیوسک پانی کا بہاؤ بآسانی گزر سکتا ہے۔ دریا سندھ گڈو بیراج سے نکلنے والے 3 بڑے کینال ڈیزرٹ پٹ فیڈر، گھوٹکی فیڈر اور بیگاری فیڈر ہے۔ گڈو بیراج کی پل ہے، یہ قدیمی پل ہے۔ یہاں پر تقریباً 300 سے زائد ملازم کام کرتے ہیں، مگر یہاں پر ڈیوٹی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پل میں جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ گڑھے پڑ جانے کی وجہ سے پل کو شدید نقصانات کا خدشہ بھی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں اور اریگیشن ملازمین کا کہنا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اریگیشن کے اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ ڈیوٹی پر غیر حاضر رہنے والے ملازمین کو ڈیوٹی پر پابند کیا جاتا ہے کہ پل کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو سکے۔ کیمرہ مین نظام لاشاری کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز، کشمیر۔
फैज़गंज में महकमे ज़राअत के दफ्तर की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। इमदाद चांग की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत फैज़गंज के दफ्तर मुकम्मल तबाह। महकमा ज़राअत के ट्रेनिंग हॉल सिंध कॉटन डेवलपमेंट पक्का चांग की बिल्डिंग काफी अरसे से नाकारा बनकर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे, दफ्तर को मुसलसल ताले लगे हैं। इसके अलावा महकमा ज़राअत के दूसरे दफ्तर से अफसरान और फील्ड असिस्टेंट भी गायब रहने लगे। महकमा ज़राअत से काश्तकारों को कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा महकमा ज़राअत के मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर भी ज़ुबू हाली का शिकार हैं। महकमा ज़राअत के आने वाले बजट को मुसलसल हड़प किया जा रहा है। फैज़गंज के काश्तकारों का कहना है कि महकमा ज़राअत से काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महकमा ज़राअत के मुलाजिम का कहना है कि अफसरान मीटिंग पर जा चुके हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है फैज़गंज की, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। यहाँ पे ज़रूरी दवाएं और बीज और खाद बिल्कुल नकली मिल रही है और महंगी मिल रही है। यहाँ के से कोई पूछने वाला नहीं। काश्तकारों ने निगरान वज़ीर आला सिंध महकमा ज़राअत के वजीर से अपील की है कि नोटिस लेकर महकमा ज़राअत खैरपुर फैज़गंज के अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। जेहलम के बासियों का दरीना मसला हल हो गया। पार्क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। जेहलम के शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। शहर के सबसे बड़े पार्क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पार्क की बहाली से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। डिप्टी कमिश्नर जेहलम, मारूफ मजहबी स्कॉलर बाबा इरफानुल हक और समाजी शख्सियत राजा तारिक महमूद ने पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौका पर जेहलम के शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की और पार्क की बहाली के इस इकदाम को एहसन करार दिया। अरसा दराज से ये वाहिद सरकारी पार्क ज़ुबू हाली का शिकार था, जो अब अपनी बहाली की तरफ गामजन है। मेरे ख्याल में आज एक जेहलम के लिए एक तारीखी दिन है। हमारी पब्लिक की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो थी हमारे पार्क्स की रिहेबिलिटेशन और मेंटेनेंस। पार्क की बहाली पर 9 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, जिससे जेहलम शहर में एक जदीद तरीन और खूबसूरत पार्क की कमी को पूरा किया जाएगा। 72 कनाल पर मुश्तमिल पार्क अरसा दराज से अदम तवज्जो के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जेहलम के शहरियों का ये दरीना मुतालबा आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सियालकोट में अशय खुरनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। शहरी जहनी अजियत में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। सियालकोट सब्जी और फलों की कीमतों को पार लग गए। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल हो चुका है। सब्जी के दाम आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। प्याज 220 रुपए किलो, लहसुन 800 रुपए और शिमला मिर्च 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। अगर बात की जाए फल की तो फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। सेब 350 रुपए से 400 रुपए किलो और अंगूर 320 रुपए से 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। फ्रूट लेना है, फ्रूट बहुत महंगा हो गया था। हमारा बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता फ्रूट लेके जाना। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और जिले इंतजामिया की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। सब्जी फलों की कीमतें जो दुकानदारों की जानिब से मुकर्रर की गई हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। करोड़ पक्का के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। अशय खुरनोश की कीमतें आम मार्केट के बराबर हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रऊफ फखरुज़्ज़मान कमर। हुकूमत की जानिब से आवाम को रोज़मर्रा की ज़रूरत अशिया सस्ते दामों फराहमी के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ देने से कासिर दिखाई देते हैं। यूटिलिटी स्टोर और मार्केट में मौजूद चीनी, घी, दालें और दीगर घरेलू ज़रूरत अशिया की कीमतें बराबर हो चुकी हैं, जिस पर यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होने वाले शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। शहर का यूटिलिटी स्टोर का रेट बराबर है। घ्यू का रेट ही बल्कि शहर का 400 रुपये ही था, 435 रुपये। चीनी जी वो भी बराबर दी है। शहर के जितने भी चलते पे टोटल ये बाजार का रेट तो शहर का बराबर है। स्टोर्स और मार्केट में मौजूद घरेलू ज़रूरत अशिया की कीमतें बराबर हो चुकी हैं, जो कि अवाम के लिए वैसे तशवीश है। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी यूटिलिटी स्टोर का रुख कर सकें। कैमरा टीम के मेरा फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड पक्का। महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया। तांदियावाला में फ़ी किलो आटा 170 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान।
तांदरेवाला में आटे की कीमतों में इजाफा होने लगा, जिसके बायस चक्की स्टॉल पे आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। तहसील तांदरेवाला में आटे की सूरत में नया बहरान 170 रुपए, जबकि चक्की स्टॉल पे आटे की शदीद किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तांदरेवाला की कस्बात गढ़ फतेशाह, कंजवानी, रहमेशाह और किलेवाला में आटा मनपसंद के भाव में फरोख्त होने लगा है। महंगाई का दौरान है भी गरीब बंदा जड़ा ना 1000 रुपया दिहाड़ी ला के ते उनका घर का निज़ाम बहुत मुश्किल चल रहा है। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ हलकों के साथ मजदूर तबका का कहना था कि पहले बहुत से मसाइल में फंसे कम उजरत पे घरेलू अखराजात पूरे होने लगे हैं, जिनमें आटे की शदीद किल्लत के साथ महंगाई रस्ते का पहाड़ बन चुकी है। दीगर रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी में बच्चों की तालीम और बिजली के बिलों के बोझ से शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि चक्की मालकान का कहना था कि गंदम महंगी होने के साथ चक्की के बिजली मीटर के अखराजात ही अदा नहीं हो रहे, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदरेवाला। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। मीरवा गोरचानी में अद्वियात की कीमतों में होशुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए अद्वियात खरीदना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक सादिक हुसैन। खाना पीना तो मुश्किल था ही, अब अद्वियात खरीदना भी मुहाल हो गया है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बायस अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अद्वियात की कीमतों ने मुल्क भर की तरह मीरवा गोरचानी के शहरियों का भी जीना मुश्किल कर दिया है। आए रोज अद्वियात की बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों के लिए अद्वियात खरीदना मुश्किल हो गया है। जबकि दिहाड़ीदार मेहनत कश तबका का कहना था कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, हम जीने के लिए रोटी लें या इलाज के लिए अद्वियात खरीदें। बात यह है कि इस टाइम हुकूमत को चाहिए गवर्नमेंट को कि इस टाइम दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि हम बच्चों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं या उनको हटा दें। आवाम तो बहुत परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह दूसरी चीज़ों पे सोच रही, मेडिसिन पे अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा है कि इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ना। अगर इस चीज़ को नहीं कंट्रोल किया गया तो हमारे लोग इलाज कराने से भी महरूम हो जाएंगे। शहरियों और मेडिकल स्टोर कीपर्स ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन ब दिन अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हम सूबाई और जिलाई प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुतालबा करते हैं कि आए रोज बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल करके कमी ला जाए, ताकि शहरियों और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबका भी बाआसानी अद्वियात खरीद कर अपने और अपने बच्चों का इलाज करवा सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज़, मीरवा गोरचानी। महंगाई का सुनामी दीपालपुर में मछली की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। सर्दियों की सौगात मछली भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जान लेते हैं अयूब खावर की रिपोर्ट में। मौसम ने क्या करवट बदली के दीपालपुर के बाजारों में मछली के स्टॉल सज गए। मौसम सरमा की प्रोटीन से भरपूर मछली बच्चों और बड़ों की पसंदीदा डिश। मछली को खाने के लिए दिल ललचाने लगता है। बच्चों के जिस्म के लिए और इनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और इंसान को हफ्ते में एक बार लाजम खानी चाहिए। मगर जो इसकी कीमतें हैं, जो रोहू मछली है वो 600 रुपए है। मछली जी ना जी ये सर्दियों का खास तोहफा है, ये प्रोटीन होंदी है और हर इंसान को खानी चाहिए, हर शहरी वास्ते जरूरी है। मगर महंगाई की मारी अवाम ने जब मछली खरीदनी चाही तो रेट सुनकर मछली का जायका ही फीका पड़ गया। मछली जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो वहीं पर इसके बढ़ते रेट की वजह से शहरी परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। चकवाल में खुसूसी अफराद के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। गवर्नमेंट डेफ एंड डिफेक्टिव हेयरिंग स्कूल चकवाल में खसूसी अफराद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला चकवाल और उसकी तमाम तहसीलों के बच्चों और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक थी। तकरीब में स्पेशल एजुकेशन चकवाल, करकार, चौसर निशा, तलरगंग और लावा के नन्हे बच्चों ने पाक फौज से मोहब्बत, माँ का किरदार, मुआशरे में स्पेशल बच्चों का किरदार और दीगर मौजूआत पर टैबलो पेश करके हाज़रीन को हैरान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन और पिंडी डिवीजन शुमाइला खान और डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक का कहना था कि हम सब इस अमर का अहद करें कि ये अफराद हमारे साथ हमारी तरह अपनी महरूमियों को भूल कर खुशहाल जिंदगी गुजारें, मुआशरे और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। किसी ऐसी चीज को चाहे वो समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन एक डिग्निफाइड तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया और इस ऑडियंस को फेस किया। ये वो क्वालिटीज़ है जो बाज़ दफ़ा नॉर्मल बच्चों में भी
हम अपनी तमाम तर एफर्ट के बावजूद पैदा नहीं कर पाते। इन बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि ये माशरे के फ़ाल शहरी बन सके और इनको जो अल्लाह की तरफ से कुछ महरूमियाँ दी गई हैं उनको इसका एहसास ना दिलाया जाए। तकरीब के अख्ताम पर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेफ एंड डिफेक्टिव हेयरिंग स्कूल चकवाल रुस्तम बेग ने डिप्टी कमिश्नर को शील्ड पेश की, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहबाज, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शुमाइला खान ने बच्चों में इनामात और असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल।